हाँ जी बेटे, सो ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 2020 2019 ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਮੇਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਰਹੂਗੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਨੰਬਰ 1, ਔਰ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਜਸਟ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਹਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਚ ਕਰਾਇਓ। ਆਈ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਸਟ ਨਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਜਦ ਲੈਕਚਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਈਜ਼, ਕਈ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਪੂਰਾ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਚਲੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਹੁਣ। ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੀ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਹੈ ਬੇਟੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਸੀ ਹੈ। ਆਈ ਗੈਸ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਫਟਾਫਟ। ਠੀਕ ਹੈ, x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3। P ਕੀ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਥੀਸ ਟੂ ਲਾਈਨਸ। ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ P ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਦਾਂ? ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ P ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ C ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ CP। ਨੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, C ਤੇ P ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ? ਦੈਨ ਦ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਵਿਚ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਸੋ ਦੈਟ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਰਿਮਾਈਂਡ ਯੂ once again ਕਿ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਦ ਆਂਸਰਸ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਮੈਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਈਆ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ B, 0,2। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ P x dash y dash, so the area of the triangle PAB is this। अच्छा, P ਪੁਆਇੰਟ देता है XY मान लो, और ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ देता ਪੁੱਤਰ। तो ये भी डायरेक्ट ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ x dash y dash ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ XY ਲੈ ਲਿਆ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पुत्र 5 है, तो सीधा फॉर्मूला लाओ। तो एरिया की होंगे हाफ, हाँ जी, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। की दसिया सी कि जे अंदर वेरीएबल हो तो प्लस माइनस खोल दो, जे अंदर कोई कॉन्सटेंट क्वांटिटी है तो पॉजिटिव खोल देना। तो समझे गल? फिर की पुछदा है? लैम्बडा पुछदा है। तो इतों तुहाडे को बेटे लोकस आ गया XY का, और वो तुहाडा कुछ इहो जिहा आ जाएगा 3x + 4y इक्वल टू समथिंग। तो समथिंग तो लैम्बडा आ जाएगा। ठीक है, तो इनू आपां एक्सपैंड कर ली। हाँ जी, पहले कॉलम ना कर लो, 2 नूं इधर लै जाओ, सो प्लस माइनस 10, सो आ गया दिस गोज दिस 2 माइनस y प्लस 0। इनफैक्ट माइनस 0 होना सी बट 0 ही हो जाना, सो प्लस x टाइम्स, हाँ जी, दिस गोज -1 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। आ 2 इधर लै गया। आ तुहाडे को एरिया दी कंडीशन सैटिस्फाई करदा P पॉइंट आ गया। ठीक है, और P पॉइंट का मोर ओवर लोकस आ गया। तो इत्थों कितना आ गया तुहाडे को 2 माइनस y माइनस 3x इक्वल टू प्लस माइनस 10, सो माइनस 3x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 10। माइनस ना मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस, कोई फर्क नहीं। ठीक है,
सो तुहाडे को आ आंसर आ गया। सो इधर अगर प्लस लैंदे हो पुत्र तो इधर आ गया 12, अगर माइनस लैंदे हो तो आ गया -8। सो देयरफॉर लाइन्स तुहाडे को लोकस आ गया इज इक्वल टू 12 और -8। कंपेयर कर लो, वो कहता जी तुहाडा लोकस है 4 लैम्डा, तो इधर 4 लैम्डा इज 12, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट 3, और 4 लैम्डा इज -8, लैम्डा इक्वल टू -2। सो 3 ਤੇ -2 ਚ देख लो ਕਿਹੜਾ 3 ਹੈਗਾ। मल्टीपल चॉइस ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ठीक है। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ locus of midpoint of perpendiculars drawn from the points on this, ओके। एक लाइन है पुत्र y इक्वल टू x/2, ठीक है। ਇੱਥੇ y इक्वल टू mx टाइप ओरिजिन ਚ पास कर दी। दूजी लाइन है y इक्वल टू x। तो पहला तो सवाल पढ़िए ख्याल ਨਾਲ, लोकस ऑफ, हाँ जी, मिड पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। तो की कहता जी इस लाइन के उपर वेरीएबल पॉइंट लो, अलग अलग पॉइंट लवांगे, अलग अलग परपेंडिकुलर आने। तो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, अगे जावांगे आ परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। अगे जावांगे आ, तो फिर कहता जी ये ਜਿਹੜੇ परपेंडिकुलर ड्रॉप किए इन्हों के मिड पॉइंट का लोकस मतलब जिमें ਇਹਦਾ। तो स्टार्टिंग कितों करिए, आ कहता पॉइंट कि लाइन पहली तो ए वेरीएबल है क्योंकि आ चेंज करांगे ये पॉइंट, तो आ परपेंडिकुलर भी चेंज होंगे या मतलब बी पॉइंट भी चेंज करेगा। अगर ए इत्थे है तो बी इत्थे होएगा, अगर ए इत्थे मूव करके आ जाएगा तो बी मूव करके इत्थे आ जाएगा, और जब ए बी चेंज करेंगे तो मिड पॉइंट भी कितने ना कितने चेंज करेगा। सो द लोकस पूछता है, तो की करिए, वेरी सिंपल। पहला तो इस लाइन के उपर वेरीएबल पॉइंट लो, और तुहानूं दस्सिया सी किवें लेना कि एक्स या वाई नूं किसी नूं कुछ भी मान लो टी, और दूजा उहदी टर्म च कढ लो। सो लेट अस सपोज वाई इक्वल टू टी, दैन व्हाट इज एक्स 2t, ठीक है। किसी भी कर्व ते कोई पॉइंट लेना होंदा, वन ऑफ द वेज इज एक्स या वाई नूं कुछ वेरीएबल मान लो, दूजा उहदी टर्म च कढ लो। हुण जिद्दां टी नूं चेंज करावांगे आह वाला पॉइंट इहदे उपर ही वेरी करेगा, यू कैन सी। सो टी इज़ अ वेरीएबल नाउ, इहदा मतलब आपां टी नूं खत्म करना है। तो हुण दूजा लोकस चाहिए ए बी दे मिड पॉइंट का, तो मिड पॉइंट का तो आएगा जो बी आ जाएगा। बी किवें कढीए, बी है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो की करिए आ लाइन है एदी स्लोप है पुत्र 1, तो आ लाइन ये परपेंडिकुलर है, तो यदी स्लोप हो गई -1। तो सानू इस लाइन की स्लोप आ गई, आ लाइन इस पॉइंट चो पास कर दी है। तो मैं की करने की कोशिश कर रहा, मैं ए बी लाइन की इक्वेशन कढ़ लाँगा और सैमल्टेनियसली सॉल्व करके बी पॉइंट कढ़ लाँगा, बिकॉज टू गैट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी आई नीड बी। सो देयरफॉर हुण ए बी की इक्वेशन कढ़ ली, इक्वेशन ऑफ ए बी। हाँ जी, कितना ए पता है, ओके ए पता है, अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है। इक्वेशन आ जाएगी y माइनस टी इज इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस 2t। देयरफॉर वी हैव x प्लस y दैट इज प्लस इज इक्वल टू 3t। हाँ तुहाडे को किहदी इक्वेशन आ गई पुत्र, ए बी लाइन दी इहदी। हुण ए लाइन इहदे परपेंडिकुलर है, तो इनू किहदे नाल सॉल्व करिए, y इक्वल टू x दे नाल टू गैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। So let us put this y there, कितना आ गया 2x equal to 3t, x equal to 3t by 2. So x coordinate आ गया 3t by 2, and similarly क्योंकि x और y बराबर है y भी आ गया 3t by 2, ठीक है। दैट्स इट। हुण आपां क्वेश्चन बिल्कुल एंड ते आ गया, इन्नी गल समझ आ गया, नोट कर लियो। अच्छा बी क्यों कढ़िया, मैं फिर याद करा दा क्यों, क्योंकि मैनू ए बी दे मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। आई नो ए, सो बी पता लग जाए तो मिड पॉइंट का लोकस आ जाएगा। सो की करिए हुण, जिहदा लोकस चाहिए पुत्र ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, लेट्स से x, y या h, k मिड पॉइंट। कंडीशन ला दो, x इज हाँ जी दिस 3t by 2 plus 2t by 2, and similarly 2y is this plus this 3t by 2 plus t by 2। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ t ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ व्हाट 4 3 7 t by 2, this is 5t by 2। सो इत्थों t ਚੱਕੋ ਇੱਥੇ पुट कर दो, या इन्हां दोनों ਨੂੰ डिवाइड कर दो। सो x by y
इक्वल टू हाँ जी t by 2 कटेगा 7/5, सो 5x इज इक्वल टू 7y। ठीक है, सो दैट्स इट। सो 5x इज इक्वल टू 7y थोड़े को सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटे, कहता जी लेट ए बी सी बी थ्री vertices of the triangle. P is a point inside the triangle such that ABC है बेटे, P एक ट्रायंगल के अंदर पॉइंट ਇਹੋ ਜਿਹਾ APC and APB and BPC, these triangles have equal areas। ਅਗੇਨ ਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ? ਸੈਂਟਰੋਇਡ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਜਿਹੜਾ P ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is nothing but the centroid of the triangle। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ABC ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਕੱਢ ਲਓ। P ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਗਏ, then the length of the line segment PQ, तो P ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਗਿਆ, Q ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ PQ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਓ। ठीक है, that was like again straightforward problem। ठीक है पुत्र, ओके। 19 वाले सवालों ਤੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ consider the set of all the lines px plus qy plus r equal to 0। now set of all the line ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ pqr ਜਦ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ we have different set of lines, because ਅਗਰ pqr constant ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਹੋਗੀ। so pqr are changing some variables, we have different lines satisfying this condition। condition ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ कि 3p plus 2q plus 4r equal to 0। then which one of this is true statement? now again याद करा दा फैमिली ऑफ लाइन च दूजा तीजा सवाल ही कराया सी। तो बिकॉज पी क्यू आर च रिलेशन पता है तो इतने आर कंपेयर कर ली, इतने R1 है, इतने 4 है कोफिशेंट, तो 4 ना कर दो डिवाइड, इनू 4 ना डिवाइड करके नाउ वी हैव अ रिलेशन बिटवीन पी क्यू आर एंड साढ़े को लाइन नज़र आ रही है। लाइन की है पुत्र पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। हाँ जी, देखो p इंटू 3/4 प्लस q इंटू 1/2 प्लस r इक्वल टू 0। हाँ जी, रिलेशन की दसदा है कि x की वैल्यू 3/4 तो y की वैल्यू 1/2 हमेशा इस लाइन ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ irrespective of PQR। therefore this line will always pass through 3/4, 1/2। ठीक है, अच्छा ये कहता है कि let the equation of two sides of triangle, दो साइडां दी इक्वेशन ਦਿੱਤੀ है 3x minus 2y plus 6 equal to 0 and 4x plus 5y minus 20 equal to 0। ठीक है, if the orthocenter of the triangle is 1 1। अच्छा, orthocenter ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ altitude ਮਿਲਦੇ। ठीक है, जिथे altitude मिलते हैं तीनों ना, that is orthocenter to this point is 1 1। now then the equation of the third side। अच्छा, if you remember एक पूरी वीडियो सी जिते इदा के क्वेश्चन कराए सी एंड दैट इज लाइक डायरैक्टली क्वेश्चन हो जाए किदा तीजी साइड चाहिए है। तो वेरी सिंपल, आ साइड पता है आ वाली, तो आ ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन आ जाएगी किदा, एदी स्लोप कितनी है 3/2 इस लाइन की, तो जो आ वाला अल्टीट्यूड है यदी कितनी होगी -2/3। आ स्लोप लिखिए, स्लोप आ गई, ए लाइन 1 1 चो पास कर दी है तो स्लोप पता लग गई। अब पॉइंट पता तो एदी इक्वेशन क्या आएगी y-1 इक्वल टू m टाइम्स x-1। आ तुहाडे को इस लाइन की इक्वेशन आ गई। हुण एदी इक्वेशन आ गई पुत्र, और एदी ऑलरेडी पता है ये दोनों लाइनां कित्थे मिलदियां एस वर्टेक्स ते, लेट दैट बी सी। तो इन्हों सैमल्टेनियसली मतलब एनू ते एनू सैमल्टेनियसली सॉल्व करके सी आ जाऊगी। ऑन दी वेरी सिमिलर लाइन्स आ दूजा अल्टीट्यूड कर लो, आ वाला अल्टीट्यूड एदी स्लोप कितनी है -4/5, बैग यू पार्डन इस साइड दी, एदी इस साइड दी स्लोप कितनी है -4/5, और आ अल्टीट्यूड इहदे परपेंडिकुलर है, इहदी हो जाएगी 5/4। आ अल्टीट्यूड की स्लोप आ गई, आप 1 1 चो पास कर रहे, स्लोप पता है पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला एस अल्टीट्यूड की इक्वेशन आ जाएगी दैट इज y-1 इज 5/4 टाइम्स x-1। सो वी नो द अल्टीट्यूड, वी नो दैट लाइन, आ वाली लाइन पता है आ, इन्होंने दोनों को सॉल्व करके मेरे को बी पॉइंट आ जाएगा।
सो मेरे को बी भी पता लग गया, सी भी पता लग गया, 2 पॉइंट फॉर्म ਦੇ ਨਾਲ बी सी ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ। ਫॉर श्योर कैलकुलेशन हैगी है, यू कैन लुक टू द आंसर्स एज वेल, क्योंकि हले ਆਪਾਂ ਆ अल्टीट्यूड ਕੱਢਣਾ है, सॉल्व करना है, ਆ वाला अल्टीट्यूड ਕੱਢ के सॉल्व करना है, बट प्रॉब्लम प्रोसीजरली ਤੁਹਾਨੂੰ पता है किवें करना है। ठीक है, चलो अगे चलते हैं। कहना लेट द पॉइंट P मूव्स ऑन दिस लाइन एंड Q एंड R आर फिक्स पॉइंट्स। आ दो फिक्स पॉइंट है, P इस लाइन ते मूव कर रहा है। ठीक है, P इज मूविंग ऑन दिस लाइन समवेयर, इत्थे गांह पिछां जांदा है और आ P है। दैन द लोकस ऑफ सेंट्रोइड, अगेन रिपीट क्वेश्चन। पहलियां वीडियो च मैं लोकस वाले च सॉल्व किया सी कि हुण की करना है, और मोर ओवर आंसर भी तुहानूं याद ही होएगा कि लोकस आएगा दैट विल बी एक लाइन आएगी जिहड़ी इस लाइन दे पैरेलल आएगी। ठीक है, मतलब आंसर ही दस सकते हो, लोकस विल बी अ लाइन विद स्लोप 2/3, और मैं उत्थे रिजल्ट भी लिखाया सी कि दैट लोकस इज गोइंग टू बी द लाइन पैरेलल टू दिस जिहदे ते P मूव करना है। ठीक है, बट चलो जो सॉल्व करना है तो P इत्थे मूव कर रहा है, तो ठीक है, इनू कुछ भी मान लो A कॉमा B वेयर A B आर वेरिएबल्स, और ए बी किनू सैटिस्फाई कर दें, सो देयरफॉर 2A माइनस 3B प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड A एंड B आर वेरिएबल खत्म करने। तो लोकस किहदा चाहिए जी, सेंट्रोइड दा, उन्होंने मान लो H कॉमा K। सो H किहदे बराबर है पुत्र, H है A प्लस 1 प्लस 3/3। ठीक है, एंड K किहदे बराबर है, B प्लस 4 माइनस 2/3। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ एच के च रिलेशन चाहिए बिकॉज वी आर इंटरस्टेड इन द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड। ए बी खत्म करना। ठीक है, लेट अस सी आंसर तो आ चुके हैं, मतलब अगर ਤੁਹਾਨੂੰ याद होवे आंसर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं समझाया सी कि लाइन होंदी है ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ मूव कर दो पैरल, बट लेट अस कैलकुलेट। हाँ जी, इतों कितना आ गया 3H इज इक्वल टू A प्लस 4, इधरों आ गया 3K इज इक्वल टू B प्लस 2। इतों A ਚੱਕੋ, इतों B ਚੱਕੋ, ਇੱਥੇ पुट करके एलिमिनेट कर दो। सो A कितना है बेटे, A है 3H माइनस 4, सो 2 टाइम्स 3H माइनस 4 माइनस 3 टाइम B कितना है 3K माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। सो कितना आ गया थोड़े को पुत्र, 6x माइनस 8 माइनस 9y प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। सो 6x माइनस 9y तो आ हो गया जी थोड़े को 10 माइनस 8 प्लस 2 इक्वल टू 0। सो 3x 2x माइनस 3y प्लस 2/3 इक्वल टू 0। आ थोड़े को लाइन आ गई विच इज क्लियरली पैरेलल टू दिस लाइन एंड हैविंग द स्लोप 2/3। ठीक है, हाँ जी, आ क्वेश्चन की कहता पुत्र के 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम दियां 2 साइडां पता है और क्लियरली नॉन पैरेलल है ना पुत्र, तो इसका मतलब एडजेसेंट साइड होनी है। ठीक है, कोई पैरेललोग्राम है तो एक मान लो आ है और दूजी मान लो आ है। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड ते एडजेसेंट होणगियां। फिर कहंदा जी डायगनल जिहड़े उन्हां दे ਉਹ कित्थे मीट करदे, एट द पॉइंट 2,4 फाइंड आउट वन ऑफ द वर्ड, मतलब वर्डसिस लभने। तो पहला तो सब तो ईजी आही है कि आ चैक कर लिए कि आही तो नहीं है ना, तो इन्हों सॉल्व करो। तो x प्लस मतलब जी आही हो तो गल खत्म, वैसे होना नहीं है। तो x माइनस वाई इक्वल टू -3। हाँ जी, कितना आ गया 2x इक्वल टू 0, x 0 एंड y 3। ठीक है, आ पॉइंट आ गया 0,3 जिहड़ा कि ऑप्शन च नहीं है। अच्छा जी आ नहीं है तो फिर आ देख लें है ना, क्यों A B C D, क्योंकि हुण आ पता है तो आ मिड पॉइंट इन्हां दा। ठीक है, 2 4 C ते A दा मिड पॉइंट है तो इनू कुछ मान लो A कमा B। सो A प्लस 0/2 इज 2 एंड B प्लस 3/2 इज 4। सो A आ गया 4 एंड B आ गया 8 5। ठीक है, सो 4,5 आ गया। चलो आ भी निकल गए। ठीक है पुत्र, सो दिस इज 4,5। इज इट द ऑप्शन, नो। फिर मतलब बी या डी चो कोई होएगा, वो भी लभ लें। वेरी ईजी, वाई बिकॉज हम जिवें आ लाइन देखते हैं
आ लाइन ये पैरल है, ठीक है। तो यदि इक्वेशन बड़े आराम ना आ जाएगी, क्योंकि एनी लाइन पैरल टू दिस कैन बी टेकन एज एक्स माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू लैमडा आ लाइन। और एक चो पास कर दी पुत्र 4 5 चो, 4 5 इन्हों सैटिस्फाई करा दो, 4 माइनस 5 इक्वल टू लैमडा, लैमडा इक्वल टू -1। या मैं स्लोप पॉइंट फॉर्मूला करना, यदि लाइन दी स्लोप माइनस यदि 1 है तो यदि भी 1 होएगी, और इस पॉइंट चो पास कर दी तो यदि इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन यही आएगी थोड़े, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है। हम मेरे को आ वाली लाइन आ गई है, आ ऑलरेडी पता है, इन्हों सैमल्टेनियसली सॉल्व करके मेरे को डी पॉइंट आ जाएगा। ये चेक कर लो है या नहीं, ठीक है। सो एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1, लेट अस सॉल्व देम, ऐड कर लो 2x इक्वल टू 2x1, and when x is 1 we have y2, so the point is 1 2। now is it the option no? तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ b ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। तो ਹੁਣ ਆ ਲਾਈਨ ਚਲੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, any line parallel to this can be x plus y equal to let's say mu, and this line passes through 4 5, ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ x plus y equal to 9, है ना। ਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਊ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਐਚੋ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਏ। तो 4 5 ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਤਾ, ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ b ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। 9 and x minus y equal to -3, 2x equal to 6, x equal to 3, and when x equal to 3 y equal to 6, so b आ गया 3,6। और जे मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व ना भी करदा तो फिर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले ਨਾਲ भी ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ कि लेट ਇਹਨੂੰ सपोज कर ਲੈਂਦਾ कुछ अल्फा कॉमा बीटा, ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆ मिड पॉइंट ਉੱਦਾਂ भी आ जाना सी, ठीक है बेटे। सो मतलब जरूरी नहीं ना वो वर्टिसेस पुछदा, वो पुछ सकदा जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। सो दैन ये भी थोड़ा पैरेलल लाइन च हजे क्वेश्चन कराया है ना। हाँ जी, आ की कहंदा पुत्र इन अ पैरेललोग्राम ए बी डी सी, ठीक है, बड़ा सियाना ए बी डी सी करता, ए बी इत्थे डी थे सी, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स आर 1 2 3 4, डी नहीं पता 2 5, then the equation of the diagonal AD। हाँ जी पुत्र, अगेन मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले की पहली वीडियो च तुहानू क्वेश्चन कराया सी कि 3 वर्टिसेस पता है, चौथा तुसी आराम नाल कढ सकदे हो, ठीक है। पैरेललोग्राम दे 3 वर्टिसेस पता होण, तुहानू दस्सिया सी कि बाइसेक्ट करदे ते मिड पॉइंट फॉर्मूले नाल तुसी डी कढ लो। तो क्योंकि डी नू ए भी मान लो, तो एज द डायगनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, देयरफॉर आ जिहड़ा पॉइंट है ए ते डी का भी मिड पॉइंट है, तो बी ते सी का भी। तो बी ते सी का मिड पॉइंट कितना हो गया 3 + 2/2, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट that should be equal to x coordinate of these two, that is a plus 1/2, and then 4 plus 5/2 is equal to b plus 2/2। तो ਤੁਹਾਡੇ को इत्थों ए बी आ जाएंगे, a कितना आ गया 4, और इत्थों ਤੁਹਾਡੇ को b आ गया 7। so this is 4,7। so ਇਹਦੀ इक्वेशन चाहिए है, 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन काट लो। स्लोप कितनी है y2 minus y1 upon x2 minus x1 5/3, एंड पॉइंट पता है इक्वेशन कर लो, मोर ओवर 5/3 स्लोप का एक ही ऑप्शन है, ठीक है बेटे। सो ये भी हो गया, आगे चलते। द स्ट्रेट लाइन दिस 2x minus 3y plus 17 equal to 0 is perpendicular to, आड़ी लाइन है, is perpendicular to the line passing through, हाँ जी किना थ्रू, passing through what 7 17 and 15 बीटा। तो परपेंडिकुलर दी सुनते सारी मतलब m1 m2 -1, तो यदि स्लोप कितनी है m1 बीटा -17 अपॉन 15 -7। दूजी लाइन की स्लोप कितनी पुत्र बेस दी, हाँ जी -2/-3, दैट इज 2/3। हम क्योंकि लाइन है परपेंडिकुलर है, देयरफॉर m1 m2 इज -1, वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। सो बीटा -17
by 8 into 2 by 3 is equal to -1. So ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 4 beta minus 17 equal to -12, 17 minus 12 that is 5. ठीक है, ओके। अगला सवाल कहता जी, ये हरे 19 वाला ही है सारे, ठीक है। The straight line is passing through the point P which is -3, 4 such that the intercepted portion वाला between the coordinate axis is bisected at P। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ क्वेश्चन चेक करो, ये ਪਿਆ होना, ठीक है। तो की क्या सी कि इंटरसेप्ट फॉर्म कर लो ने, या तो जब कोऑर्डिनेट एक्सिस 'ਚ कोई लाइन मिलती होवे ਉਹਨੂੰ मान लो A0 0 भी है ना, उस तो बिना भी हो जाएगा बट लाइक वन ऑफ द वेज। तो लाइन की इक्वेशन होगी ਤੁਹਾਡੇ को x by a प्लस y by b इक्वल टू 1, और क्योंकि मिड पॉइंट है तो -3 इज a प्लस 0 by 2 एंड 4 इज b प्लस 0 by 2। तो a आ गया -6, b आ गया 8, ਇੱਥੇ पुट कर दो x by -6 प्लस y by 8 इक्वल टू 1। LCM ले लो पुत्र, ਤੁਹਾਡੇ को आंसर आ गया, गल खत्म, ठीक है। और उत्थे मैं जनरल ਤੁਹਾਨੂੰ कराया सी क्वेश्चन कि जे P कोई पॉइंट होवे जिस लाइन जा रही हो किसी रेशो च कट करता हो, मान लो 2:3 या कोई भी रेशो, तो फिर तो सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा A और B, फिर ਤੁਹਾਡੇ को आ जाएगा, ठीक है पुत्र। हाँ जी बेटे, आ क्वेश्चन कहता पुत्र कि द पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। किहदे च लाए करदे आ बाद दियां गल्लां, पहला लॉजिक समझ लीए। कहता वो पॉइंट जिहड़ा जिन्ना डिस्टेंस x तो है उन्ना ही डिस्टेंस y तो है। तो ये तो मैं नोट भी लिखाया सी कि अगर कोई पॉइंट है x ते y, और x तो डिस्टेंस कितना होंदा बेटे मॉड y, y तो डिस्टेंस मॉड x। सो कंडीशन किवन की है कि दोनों डिस्टेंस बराबर होण, ठीक है। इसका मतलब वो पाथ की आ जाएगा आ वाला, मतलब x इक्वल टू y या x इक्वल टू -y। व्हाट डज दैट मीन कि आ लाइन आ गई x इक्वल टू y, इस लाइन ते तुसी कोई भी पॉइंट लोगे उदा जिन्ना डिस्टेंस x तो उन्ना y तो, और दूजी लाइन की आ गई x इक्वल टू -y, ठीक है। समझ आ रही गल पुत्र, मतलब इस लाइन ते भी कोई पॉइंट लोगे आ लेंथ है बराबर हैगी। सो उदा लोकस कर लेना आप कि डिस्टेंस दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस तो इक्वल, मतलब इन्हां इस पाथ ते कोई पॉइंट लोगे तो डिस्टेंस x ते y तो बराबर आएगा। अगर इन्हां लाइनां ते नहीं लिया, एक लेंथ छोटी तो एक वड्डी आ जानी। बट हुण वो की चाहुंदा है, वो चाहुंदा है कि बई जिहड़ा साडा पॉइंट है, पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन इस लाइन ते लाया करे। तो किवें करांगे, बड़ा सौखा है। ये लाइन मान लो इत्थे किते इदां दी है, किद्दां कड्डांगे, पुट x0 y3 है ना, y0 x5 ਇਹੋ जी मान लो लाइन आ गई। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਕੁਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਓਗੇ ਲੈਂਥ x ਤੇ y ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। तो सिंपली की करना है, इस लाइन का y इक्वल टू x ना पॉइंट इंटरसेक्शन, ठीक है, और इस लाइन का y इक्वल टू -x ना, और तुम देखोगे दैट विल लाई इन फर्स्ट एंड सैकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। पॉइंट इंटरसेक्शन कट के, क्योंकि मैं एक्यूरेट प्लॉट किया तो नज़र आ गया भी पहले दूजे च करदा, ठीक है। ओके अगे वो कहता जी, सपोज द पॉइंट्स दिस h, k 1, 2 -3, 4 lie on a line L1, ठीक है। तो यदा मतलब की हो गया, दो पॉइंट दिते सानू, इथों L1 की इक्वेशन आ गई, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म तो गल खत्म, और उहदे ते h, k सैटिस्फाई कराता। तो की हो गया, यदि स्लोप कर लो पहला, 4 - 2 by -3 - 1 that is 2 by -4 that is -1/2। स्लोप आ गई पुत्र, पॉइंट आ ले लो। सो y - 2 is equal to -1/2 times x - 1। सो 2y - 4 is equal to 1 - x, x plus 2y equal to 5। आ बेटे इस लाइन की इक्वेशन कर ली, और ये h के लाई कर दे, ठीक है। therefore h plus 2k equal to 5। is that clear?
चलो इन्ना आ गया तुहाडे कोल। फिर की कहंदा है, वो कहंदा है कि इफ द लाइन L2 पासिंग थ्रू HK, ठीक है, HK कॉमन ही है मतलब, if the line passing through HK and 4, 3 is perpendicular to L1, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ L1 ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਈ ਸੀ, ਆ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਬੇਟੇ, -1/2। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਹੋ ਗਈ m ਡੈਸ਼, दैट इज इक्वल टू 2। तो स्लोप पता लग गई, ਇਹਦੀ पॉइंट पता है, तो ਇਹਦੀ इक्वेशन आ जाएगी। और एच के बेसिकली की इतने भी लाई करता है, मतलब इन्हों का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेसिकली। तो यदि इक्वेशन में कर लो, सो y-3 इज इक्वल टू 2 टाइम x-4, सॉरी। सो y-3 इज इक्वल टू 2x -8। सो दूजी लाइन की इक्वेशन आ गई 2x - y इज इक्वल टू 5। सो बेसिकली एच के दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इन्हों सैमल्टेनियसली सॉल्व करके एच ते के कढ़ लो, तो फिर के बाय एच कढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीगा, कोई मतलब कॉम्प्लीकेट नहीं। दो लाइना परपेंडिकुलर, they get the point of intersection and divide their coordinates. The slope of the line passing through 2, 3 and intersecting this line at a distance of 4 unit. सीधा सवाल तुहानू कराया सी पैरामीट्रिक फॉर्म च डायरैक्ट। तो एस, क्योंकि इस तो लाइनां बड़ियां सारियां जाणगियां, सानू वो पर्टिकुलर स्लोप चाहिए जिथे जी लाइन जाके इन्हू किन्ने डिस्टेंस से कट करे, 4 डिस्टेंस से, ठीक है। तो यदि स्लोप थीटा मान लो, आई एक्स एक्सिस। So therefore any point at a distance 4 unit from this point A कितना होगा, समझा रही गल, पैरामीट्रिक ला दी। A तो 4 डिस्टेंस ते कोऑर्डिनेट किहड़ा होएगा, B, वो कितना है x1 + r cos थीटा एंड y1 3 + 4 sin थीटा। ना A पॉइंट किनू लाई करदा पुत्र, ए एस ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ लाई करेगा, ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ थीटा च इक्वेशन आ गई, ठीक है। then slope पूछिए, मतलब tan थीटा चाहिए, is that clear, गल खत्म। सो पैरामीट्रिक का डायरेक्ट जिहा सवाल है। सो इन्हू पुट कर दो, तो कितना आ गया 2 + 4 cos थीटा एंड 3 + 4 sin थीटा इक्वल टू 7। सो 5 उधर आ जाएगा 2, सो 4 cos थीटा + 4 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा + sin थीटा इक्वल टू 1/2। तो ये तो आप की करना, इन्नी गल समझ आ गई, मैं रेस करना, ये तो आप tan थीटा करना। ना 2-3 तरीके है, एक तो या इनू cos ना डिवाइड कर दी है ना, तो कितना आ गया 1/cos 1 आ जाएगा, sin/cos, ठीक है, तो tan आ जाएगा 1/2, 1/cos आ जाएगा secant, ठीक है। सो 1 + tan थीटा इज इक्वल टू secant थीटा बाय 2, दोनों पासे कर दो स्क्वायरिंग y, secant स्क्वायर थीटा किया जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो मेरे को tan के अंदर क्वाड्रेटिक आ गई, एक था तरीका, वो तो tan थीटा नजर आ जाएगा। सो 1 + tan थीटा नू t मान लिए + 2t इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा इज 1 + tan स्क्वायर थीटा बाय 4। सो दिस इज 4 + 4t स्क्वायर + 8t इज इक्वल टू 1 + t स्क्वायर, where t is tan थीटा, ठीक है। सो दिस इज 3t स्क्वायर + 8t + 3 इक्वल टू 0। सो t ਲਈ सॉल्व कर लो, सो t कितना आया -b √b² -4ac by 2a by 6। now what is t पुत्र, tan थीटा। तो इनू सिंपलीफाई कर लो, रैशनलाइज कर लो, थोड़ा आंसर भी अंडर रूट की टर्म से गल करता मैं, tan थीटा ही स्लोप है, ठीक है। तो एक तरीका हो गया। दूजा ऑप्शन जिदा बिगनिंग जी क्वेश्चन बनी सी ना, आ देखो sin थीटा + cos थीटा इज हाफ, इतों अपन tan थीटा चाहिए, तो एवं भी कर सकते, स्क्वायरिंग कर दो, sin² + cos² 1
plus 2 sin theta cos theta sin 2 theta is equal to 1 by 4. So sin 2 theta is 1 by 4 minus 1 minus 3 by 4. ਇੱਥੋਂ tan ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, sin 2 theta ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ tan ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ tan theta 'ਚ ਉਹੀ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ tan theta ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, these two lines are perpendicular। ठीक है, m1 m2 minus 1, then the distance of the point of intersection from origin। तो ठीक है, इस कंडीशन तो ਜਿਹੜਾ a नज़र आ रहा है ना वो आ जाएगा। तो पहली लाइन की स्लोप कितनी है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इंटू दूजी की स्लोप बेटे -2 बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो माइनस प्लस हो गया, -1 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, सज्जे पासे ले आओ। सो इक्वेशन आ गई a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इफेक्टिवली ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ a ਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਕਿਊਬਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਕਿਊਬਿਕ ਹੋਵੇ ਜੇਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ +-1 +-2 +-3 ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਲੈਟ ਚੈੱਕ ਫॉर -1 ਦਾ ਕਿਊਬ -1 -1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 1 -1 + 2 ਯੈਸ -2 + 2 m ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਮਤਲਬ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਗਈ, -1 ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो चलो पहला -1 रूट आ गया तो इक्वेशन की बन गई हूँ x -1 -2y इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 1। सो आ दो लाइन आ गई थोड़े को, इन्हों सॉल्व करके थोड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का की चाहता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो वह 0 0 तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया। अच्छा, वैसे जे तुसी कन्फर्म करना चाहते हो और क्यूबिक कोई होर रूट तो नहीं है, मतलब a की वैल्यू -1 है ना, तो रूट तो क्यूबिक के 3 होने, कितने होर कोई रियल रूट तो नहीं। तो जब एक रूट आ गया पुत्र a इक्वल टू -1, यदा मतलब a + 1 की होएगा ਇਹਦਾ फैक्टर। ठीक है, यदा मतलब इनू लॉन्ग डिवीजन करके तुसी जब देखोगे तो सर्टनली रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ऊपर क्वाड्रेटिक कोशेंट आ जाएगा एंड यू विल सी ਜਿਹੜੇ क्वाड्रेटिक आइए ये कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। ठीक है, तो जे मान लो आंदा फॉर एग्जाम्पल तो फिर वो वाले पॉइंट भी कंसिडर करने से, मतलब ये वैल्यू होर आ जानियां, फिर इत्थे वो पुट करते हैं, बट एस केस यूल सी कि नहीं आऊगा। इज आर क्लियर। और क्यूबिक होवे तो जेई दे अंदर एज आई टोल्ड यू कि +-1 +-2 +-3 चों पॉइंट सैटिस्फाई कर जाता होंदा। फिर कहता लाइन्स आर ड्रॉन पैरेलल टू द लाइन। अच्छा, ये पैरेलल लाइनां ड्रॉ कीतियां। हाँ जी, ये तो एनी लाइन पैरेलल टू दिस कैन बी टेकन एज 4x - 3y + लैम्डा इक्वल टू 0 फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ये सारिया लाइनां ये पैरेलल ही जानियां, बट आपां नूं वो लाइन चाहिए है जिहदा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 3/5। ठीक है, इफ यू रिमेंबर मैं दस्सिया सी कि लैम्डा या इहदी कोई भी वेरीएबल की वैल्यू कढ़न लई ना तुहानूं कोई ना कोई कंडीशन दे दोगे, कंडीशन भी देती है कि वो लाइन चाहिए जिहदा ओरिजिन तो डिस्टेंस जिहड़ा वाला कितना है 3/5। So let us apply the condition and lambda कर लिए। So distance from 0 0 x 0 point the line to distance divide by a square plus b square 5 आ जाएगा is equal to 3/5। और ये भी थोड़े ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली वीडियो क्वेश्चन है। हाँ जी, कट गया is equal to 3 लैम्डा इक्वल टू 3 और -3। सो क्लियरली दो लाइना होनी, एक इधर और एक ये पैरेलल बिल्कुल नीचे इदा। ठीक है, सो देयरफॉर एक लाइन आ जाएगी 4x - 3y इक्वल टू 3 एंड अदर विल बी 4x - 3y इक्वल टू -3। हुण चाहुंदा की है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन एनी ऑफ दीज लाइन। तो कुछ नहीं करना, अब पॉइंट चारे चक के
एनू या एनू जिहड़ा सैटिस्फाई कर गया वो आ गया। दो लाइनां आ गई ना। सो जब पॉइंट तो इनफिनिट होणगे ना बेटे, यूनीक नहीं ना, पॉइंट लभ नहीं सकते, चैक करा सकते हैं जिहड़ा पॉइंट है वो सैटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, फिर कहते हैं स्ट्रेट लाइन एल is at a distance of 4 unit from origin। एक लाइन एल आ पुत्र, ਉਹਦਾ डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है 4 एंड मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट मतलब ये आ वाला एक्स ਤੇ वाई ये इधर पॉजिटिव एक्स ਤੇ कट करेगा पॉजिटिव वाई ਤੇ, मतलब ਇਹੋ जी डायग्राम जो बनाई हो ठीक बनाई है। एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मतलब आ वाला to this line makes an angle 60 degree with x plus y equal to 0। अच्छा, what sort of line is x plus y equal to 0? x plus y equal to 0 आ लाइन है। अच्छा, वैसे एनी डायग्राम देख के थोड़े माइंड च आ गया यार ओरिजिन तो इस लाइन ते परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो अगर मैंने समहाउ आ वाला एंगल आ जाए तो केड़ी फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पता है अनॉर्मल दा, ते अगर नॉर्मल दा कितों मैनू आ थीटा आ जाए तो इस लाइन की इक्वेशन की आएगी x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, और पी कितना डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 4। ठीक है, नाउ तो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस एंगल। हो कहता ना नॉर्मल है इस लाइन के नाल, आ लाइन की है बेटे x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड यू नो x प्लस वाई इक्वल टू 0 की स्लोप किन्ने पुत्र -1, मतलब आ टोटल एंगल कितना है 135 डिग्री या आ कह ला कितना है 45 डिग्री। ठीक है, इतने लाइन की स्लोप तो कर लिया। फिर कहना नॉर्मल जड़ा साडा ते इस लाइन च एंगल है 60 डिग्री, तो ये तो मेरे को आ वाला एंगल आ गया बिकॉज दिस टोटल इज 180। ठीक है, therefore this theta is 180 minus 60 minus 45। हाँ जी कितना आ गया, दिस इज 120 minus 45 दैट इज 75। ये मतलब आ वाला एंगल मैनू पता लग गया और नॉर्मल दा एक्स एंगल 75, तो इत्थे सिंपली मैं की करना है cos 75 ते sin 75 की वैल्यू पुट करनी है तो मेरा आंसर आ गया। फिर लाइन की इक्वेशन अगर एंगल की टर्म च पूछी होंगी तो आ जाना सी। ठीक है, sin 75 इक्वल टू 4 एंड नाउ यू नो कि 75 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री तो। ठीक है, हाँ जी, cos 75 इज cos 45 प्लस 30। हाँ जी, cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2 √2 एंड साइन 75 इज साइन 45 प्लस थीटा, ये आ जाएगा √3 प्लस 1/2 √2। सो लेट्स जस्ट प्लग दिस वैल्यू x इंटू √3 प्लस 1 y इंटू √3 दिस इज -1 कॉस्ट माइनस है h प्लस 1 बाई 2 √2, वो एल्सियम ले लो 8 √2 आ गया। सो x इंटू √3 -1 y इंटू √3 प्लस 1, यस दिस इज आंसर। ठीक है बेटे, सो नॉर्मल फॉर्म का भी उन्होंने चेता आ गया। तो जिदा मैं ईवन वीडियो भी तुहानू कहा मैं क्या ये मतलब रेशो इन्नी की होंगी है कि अगर 10-15 सवाल पूछे गए तो एक अद्धा ही होंगे है। ठीक है, ठीक है पुत्र, तो आई गेस इन्ना तुहानू समझ आया होएगा। सो जस्ट पुट इन द कॉमेंट सैक्शन कि तुहाडे आंसर्स ते नाल दी नाल आई विल आल्सो पुट द आंसर्स की एग्जैक्ट आंसर की। ठीक है बेटे, ओके पुत्र।